شریف نے قرض لے کر بڑی مشکل سے بیٹی کا فرض ادا کیا تھا کہ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کا شوہر اسے میکے چھوڑ گیا اور بڑی مشکل سے شریف نے بیٹی کی ڈیلیوری کروائی۔ تو بچے کی پیدائش ہوئی تو شوہر لینے چلا آیا تو بیٹی روتے ہوئے بولی، ابا میرا شوہر بہت ظالم ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ لیکن حالات سے تنگ باپ نے بیٹی کو زبردستی بھیج دیا اور پاس کھڑی ماں کچھ بھی نہ کر سکی۔ 5 ماہ گزر گئے تو بیٹی کی کوئی خبر نہ آئی تو ماں باپ بیٹی کو ملنے چلے گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر باپ اپنا سر پیٹنے لگا کیونکہ ان کی بیٹی۔ شریف شرمندہ شرمندہ سا آنکھیں جھکائے اپنے سیٹھ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا سیٹھ اسے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تم نے تو یہ کام ہی پکڑ لیا ہے۔ ابھی پچھلے مہینے تمہاری بیوی بیمار تھی، تم نے مجھ سے 10,000 کا قرضہ لیا تھا اور اب کہہ رہے ہو کہ بیٹی کی شادی ہے تمہیں 2 لاکھ چاہیے۔ دیکھو، اگر میں تمہیں ہر مہینے قرضے کے نام پر لاکھوں روپے دیتا رہا تو میں کنگلا ہو جاؤں گا۔ شریف نے نم آنکھوں سے اپنے سیٹھ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، صاحب جی بس یہ آخری دفعہ دے دیں، بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے اور میں تو وہ بھی بہت سادگی سے کر رہا ہوں، بس ضرورت کی ہی 4 چیزیں اسے دینی ہے اور گھر سے ہی رخصت کرنا ہے۔ میرا یقین مانیں کہ میں آپ کی پائی پائی لٹا دوں گا اور اپنی ڈیوٹی سے زیادہ آپ کو وقت بھی دے دوں گا، رات 12 1 2 بجے تک، جب تک آپ چاہیں میں آپ کا کام کرتا رہوں گا۔ لیکن اس وقت میری بچی کی رخصتی اور شادی کا معاملہ ہے۔ آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بیٹیوں کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے۔ لڑکے والوں نے یکدم ہی شادی مانگ لی، ورنہ میں نے تو رشتہ کرتے وقت 6 مہینے کا وقت لیا تھا۔ سیٹھ نے ایک گہری سانس بھری اور سامنے رکھے چیک بک سے ایک چیک لیا اور اس میں رقم درج کر کے وہ چیک شریف کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کہنے لگے، یہ آخری بار تمہارے اوپر میرا احسان ہے، اس کے بعد مجھ سے بالکل امید نہ رکھنا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ شریف نے اپنے آنسو پونچھے اور خوشی سے وہ چیک لیا اور کہنے لگا، صاحب جی آپ فکر ہی نہ کریں، میں دوبارہ آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ دوسری بیٹی تو ابھی میری 14 برس کی ہے، اس کی شادی کو بھی 5-4 سال ہیں، انشاءاللہ تب تک تو میں خود ہی پیسوں کا انتظام کر لوں گا۔ سیٹھ کہنے لگا، دیکھو تمہاری بیٹی کی شادی ہو یا نہ ہو، لیکن میں تمہیں ایک بھی چھٹی نہیں دے سکتا۔ شادی کا وقت ایسا رکھنا جو میرے کام میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ یہ سن کر شریف کچھ متفکر سا ہوا تھا، لیکن پھر فوراً سے مان گیا۔ 50 سال کی عمر میں بھی وہ بے حد کمزور، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی دکھتا تھا، لیکن ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر بہت زیادہ تھا۔ کھانا کھانے بیٹھتا تو فکریں اس قدر سر پر سوار ہوتی کہ ایک روٹی سے زیادہ اس کے حلق سے اترتی نہیں تھی۔ 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ بے شک تینوں ہی صابر اور فرما بردار تھیں، لیکن بنا جہیز کے کوئی بھی رخصت کروانے کو تیار نہ تھا۔ بڑی بیٹی 20 سال کی ہو چکی تھی۔ رشتہ کرتے وقت شریف نے لڑکے والوں کو صاف کہہ دیا تھا کہ 6 ماہ تک وہ رخصتی دے سکتا ہے۔ تب تو انہیں اعتراض نہ تھا، لیکن اب کہنے لگے کہ ان کی دادی بہت بیمار ہے، اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور اس کی آخری خواہش ہے کہ پوتے کی شادی دیکھ لے۔ 1 مہینے میں ہی انہوں نے رخصتی مانگ لی تھی۔ شریف تو پریشان سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ابھی پچھلے مہینے ہی اس کی بیوی کو ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ اس نے سیٹھ سے پیسے لیے تھے کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو نہ بیماری کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی اور نہ ہی ادویات دی جاتی تھیں، اس لیے پرائیویٹ ہاسپٹل میں دکھایا تھا۔ بیوی کو کچھ افاقہ ہوا ہی تھا کہ بیٹی کی سسرال والوں نے شادی کا شور مچا دیا۔ 15 گھنٹے کی ڈیوٹی شریف اپنے سیٹھ کے گھر پر دے رہا تھا۔ وہ ایک سیٹھ کے بنگلے میں چوکیداری کی نوکری کرتا تھا، لیکن بازار سے سودا سلف لانے کی بھی ذمہ داری اسی کی تھی۔ باقی بھی گھر کے بہت سے چھوٹے موٹے کام وہ کر دیتا تھا۔ تنخواہ بھی بہت زیادہ نہ تھی، لیکن سیٹھ اچھا تھا۔ پھر شریف نام کا ہی نہیں بلکہ عادت کا بھی بے حد شریف تھا۔ اس نے آج تک کبھی سیٹھ کی بیوی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ شریف کے ہوتے ہوئے سیٹھ کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ یوں اس کے گھر کا خیال رکھتا تھا جیسے یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہو، اور آج کل کے دور میں ایسے لوگوں کا ملنا بھی بہت مشکل ہو چکا تھا، اس لیے سیٹھ اس کی مالی مدد کر دیا کرتا تھا۔ بیگم صاحبہ بھی اپنے اور بچوں کے پرانے کپڑے شریف کو ہی دیتی تھیں، جس کو پہن کر ہی اس کی بچیوں نے پرورش پائی تھی۔ بیٹی کی شادی پر بھی سارے انتظامات اس نے خود کیے تھے، لیکن اپنی ڈیوٹی سے بھی اس نے منہ نہیں موڑا تھا۔ بس رخصتی سے 1 گھنٹہ پہلے وہاں پہنچا تھا، بیٹی کا نکاح کرایا، کھانا وانا کھلا کر رخصت کیا اور واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ شریف اب مطمئن تھا کہ چلو شکر ہے بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی، ایک ذمہ داری اس کے سر سے اتری۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ 30,000 کی قلیل تنخواہ میں
घर को कैसे संभाले का और कैसे सेठ का कर्जा उतारे का। अगर वो अपनी 12 घंटे की बजाय 18 घंटे की भी ड्यूटी कर देता तो सेठ 10,000 ऊपर बढ़ा देता। शरीफ की आंखों के नीचे गहरे हल्के साफ नुमायां होने लगे थे। इसकी आंखें रात भर जाग जाग कर यूं थीं जैसे अंदर धंस चुकी हों। पूरे जिस्म पर लगता था कि सिर्फ हड्डियां हैं, गोश्त नहीं। उम्र से पहले वो अपनी उम्र से 10-15 साल बड़ा लगने लगा था। वजह ये थी कि गुर्बत में इज्जत की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो चुका था। अगले रोज़ जब वो घर आया ताकि वो सुकून से 4-5 घंटे सो जाए ताकि दोबारा से ड्यूटी दे सके। थका देने वाली ड्यूटी देकर वो घर पहुंचा ही था, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा घर पर एक बेहंगम सा शोर था। बेटी के ससुराल वालों की एक नई रस्म थी कि शादी के अगले रोज़ बेटी को वो मैके छोड़ने वो खुद आते थे। दोपहर के वक्त ही शरीफ घर पहुंचा था और देखा तो बीवी किचन में खड़ी बड़े पतीले में मुर्गी का सालन बना रही थी। बेटी और इसकी सास और नंदे सब सहन में बैठी हैं। नंदों के शौहर और बच्चे तक साथ आए थे। तकरीबन घर में 15 से 20 अफराद थे। बच्चों ने पूरे सहन में उधम मचा रखा था। मजबूरन शरीफ को इन मेहमानों के पास बैठना पड़ा। इसने तो सोचा था कि चलो बेटी अपने घर की हुई तो अब वो सुकून से अपने घर के अखराजात को कम करेगा, लेकिन बेटी के ससुराल वाले तो रस्मों के नाम पर इसके घर बैठे थे। कुछ देर मेहमानों के पास बैठकर जब वो किचन में आया तो बीवी कहने लगी कि खाना तो ये लोग खाकर ही जाएंगे। कहने लगी, सालन तो मैं बना रही हूँ, रोटियाँ तुम बाजार से ले आओ। इतने सारे मेहमानों की रोटियाँ घर में तो बनने से रहीं। शरीफ कहने लगा, तुम्हें पता भी है कि मैंने सेठ से कर्जा उठा के ये शादी की है। वो कहने लगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब अगर बेटी की ससुराल वाले घर आ गए हैं तो क्या इन्हें घर से निकाल दें। खाना तो पूछना ही पड़ेगा ना। बीवी की बात सुनकर शरीफ घर से बाहर निकल गया। तंदूर वाले से उधार में रोटियां लेकर आया। इसके ससुराल वालों को खाना खिलाया। अपनी तरफ से उन्होंने अच्छी मेहमान नवाजी की थी, लेकिन फिर भी इसकी सास और नंदों के मुंह बने हुए थे। शायद इस वजह से कि इसने खाने में सिर्फ एक ही सालन रखा था। खाना खाते ही सास ने जाने की जल्दी मचा दी। फिर शरीफ से कहने लगी कि बेटी को अब 4 दिन अपने पास ही रखो, ये हमारी रस्म है। 4 दिन बाद हम फिर से इसे लेने आएंगे। और फिर वो कहने लगी कि इस बार तो मैं आपसे कुछ नहीं कह रही, लेकिन अगली बार मेरी सारी बेटियां और दामाद मेरे साथ ही आएंगे। आपने तो इस बार एक ही सालन रख दिया, लेकिन देखे मैं दामाद वाली हूँ। अगली बार खाना अच्छा रखिएगा, वरना मेरे दामाद तो मेरी बेटियों को ताने दे देकर ही तंग कर डालेंगे। आप तो इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। शरीफ ने आगे से कुछ नहीं कहा, उल्टा सोच में पड़ गया था कि 4 दिन बाद जब बेटी की सास इसे लेने आएगी तो वो दावत के इंतज़ाम के लिए पैसे कहाँ से लाएगा। वो तो साफ कह गई थी कि अगली बार अच्छा इंतज़ाम करें। बेटी की सास नंदे जा चुकी थीं। शरीफ सर पकड़कर वहीं पर सहन में रखी चारपाई पर बैठ गया। बेटी ने जब बाप को परेशान देखा तो कहने लगी, अब्बा फिक्र मत करें, मेरे पास मेरी सलामी के कुछ पैसे मौजूद हैं, वो आप रख लें। मेरी सास को इन पैसों का नहीं पता। शरीफ ने तशक्कर भरी नज़रों से बेटी की तरफ देखा, जो इसके कहे बिना ही इसका मसला समझ गई थी। बेटी ने अपने पर्स से 10,000 रुपये निकाले और बाप के हाथ में रख दिए। कहने लगी, आप इन पैसों से खाने का अच्छा इंतज़ाम कर दीजिएगा। शरीफ को अपनी बेटी पर जी भरकर प्यार आया था। इसने इसके माथे का बोसा लिया, नम आंखों से इसे साथ लगाया और कहने लगा कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है तुमसे पैसे लेते हुए, लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटा। आंखों की नमी इसके लहजे में भी घुल गई थी। एक बेबस बाप किस तरह से ये लफ्ज़ अदा कर रहा था, ये वही जानता था। बेटी ने शरीफ के दोनों हाथों को पकड़कर होंठों को लगाया और कहने लगी, अब्बा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने आज तक हमारे लिए सब कुछ किया है। 4 दिन बाद शरीफ ने खाने का अच्छा एहतमाम किया था। सास और नंदे सभी बड़ी खुश थीं। बेटी वापस अपने घर जा चुकी थी। इस बात को अभी 2 माह ही गुजरे थे कि फिर से बेटी की सास इसे घर पर ले आई। कहने लगी कि आपको मुबारक हो, आप नाना बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर शरीफ खुश हो गया था। फिर वो कहने लगी कि हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले बच्चे का सारा खर्चा लड़की के घर वाले करते हैं। ये सुनकर शरीफ की मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई थी और चेहरे पर तफक्कर की लकीरें गहरी होने लगीं। ये एक नई फरमाइश थी। कहने लगी कि पहली दफ़ा तो आपकी बेटी को हॉस्पिटल में ही मैं ही ले गई थी और इसका खर्चा भी मैंने ही कर दिया था, लेकिन अब जो रस्म है इसके मुताबिक अगली बार ये जब भी हॉस्पिटल जाएगी इसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये सुनकर तो शरीफ की बीवी भी परेशान हो गई थी। सास ने कहा कि हर महीने चेकअप के 5,000 रुपये चाहिए होंगे। बाकी 7वें महीने में आपकी बेटी को आपके घर छोड़ जाऊंगी।
जब बच्चा हो जाएगा तो फिर ही लेने आऊँगी। और देखें, हमारे घर ये भी रस्म है कि जब सास और नंदें बहू और पोते को लेने आती हैं तो बहू के मेके वाले सब लोगों को जोड़े देते हैं। तो देखिए, जोड़े आप लोग ऐसे दीजिएगा ताकि मेरी बेटियों के ससुराल वालों में इन्हें बातें न सुननी पड़े। ये कहकर वो बेटी को भी साथ ले गई। अब तक शरीफ ने अपने सेठ के सिर्फ 40,000 ही उतारे थे। हर माह वो 20,000 अपने सेठ को दे रहा था और बाकी घर का खर्चा जो कि बीवी बहुत ही मुनासिब कर रही थी। यूँ समझें कि ज़रूरत के अलावा इनके घर में कोई भी चीज़ नहीं आती थी। और इस पर अब ये नया खर्चा शरीफ ने अपने मालिक से कहा, जहां वो 18 घंटे ड्यूटी देता है, इसकी ड्यूटी 2 घंटे और बढ़ा दें। ये सुनकर सेठ ने इसकी तरफ देखा और कहने लगा, 20 घंटे की ड्यूटी दोगे तो पागल हो जाओगे। तुम्हें आराम की भी ज़रूरत है शरीफ। वो कहने लगा, सेठ साहब, मैंने तो सोचा था बेटी की शादी करूंगा तो वो अपने घर में सुकून से रहेगी, लेकिन यहाँ तो रस्मों के नाम पर खर्चे शुरू हो गए हैं। बेटी की ससुराल वाले कह रहे हैं कि पहले बच्चे का सारा खर्चा मुझे ही करना है। अब कमाऊंगा तभी तो ये सब पूरा करूंगा। कुछ देर तो मालिक इसे देखता रहा, फिर कंधे झुकाकर कहने लगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। शरीफ की अब ये हालत थी कि 20 घंटे की ड्यूटी देकर जब वो वापस आता तो निढाल हो चुका होता। आते ही सो जाता। 4 घंटे बाद हड़बड़ाकर उठ बैठता। बीवी से कहता कि इसे उठाया क्यों नहीं। वो कहती, कोई बात नहीं, अगर तुम कुछ देर बाद चले जाओगे तो। वो कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक नया खर्चा हमारे सर पर आन पड़ा है। शरीफ की बीवी ने इसके सामने खाना रखा तो कहने लगा, मुझे भूख नहीं है, मेरी तो भूख ही मर चुकी है। हर माह 5,000 अलग निकालने हैं और इसके बाद बच्चे की पैदाइश में जाने कितने पैसे लग जाएंगे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँगा। शरीफ के लाख मना करने पर भी इसकी बीवी ने ज़बरदस्ती इसको रोटी खिलाई थी। कहने लगी कि खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो फिर क्या करोगे। जैसे तैसे इसने हलक से नवाले उतारे थे और फटाफट से नहा धोकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। 7वें महीने जब बेटी घर आई तो पीली जर्द पड़ी हुई थी। पहले से बेहद कमज़ोर थी। इस बार इसको छोड़ने इसका शौहर आया था। बड़ा ही नखरेबाज था। टांग पर टांग रखे बैठा रहा। शरबत पीने के बाद भी कहने लगा कि खाना खाकर ही जाऊंगा। शरीफ दामाद के लिए बाजार से चिकन टिक्का और दूसरी अशिया ले आया और खाना इसके सामने रख दिया। दामाद ने खाना खाया और चला गया। बेटी बेहद कमज़ोर थी। शरीफ की बीवी ने बेटी से पूछा कि क्या बात है, तुम सही से खा पी नहीं रही। तो इसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। कहने लगी, बस अम्मा, सब कुछ खाती हूँ, पता नहीं क्यों सेहत नहीं बन रही। शरीफ ने महसूस किया था कि जब से बेटी आई थी चुप चुप सी थी। एक बार जब शरीफ ड्यूटी करके थका हारा घर पहुंचा तो इसकी बीवी कहने लगी कि मैं बेटी को आज डॉक्टरनी के पास लेकर गई थी। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी और इसका बच्चा बहुत कमज़ोर है। अगर इन्हें अच्छी खुराक ना दी गई तो ख़तरे वाली बात है। ये सुनकर शरीफ मज़ीद परेशान हुआ था। बेटी को दूध, फल और अच्छी खुराक की ज़रूरत थी जो वो देने से कासिर था। कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। कुछ देर बाद कहने लगा कि जो दूध चाय के लिए आता है, तुम हमें चाय मत दिया करो, बस पानी और पत्ती का कहवा बनाकर दे दिया करो। वो दूध तुम बेटी को पिला दिया करो, इसे इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। ये कहकर वो घर से बाहर चला गया। पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि अब क्या करे, बच्ची की खुराक कहाँ से पूरी करे। 20 घंटे की ड्यूटी देने के बाद जब वो घर के लिए लौट रहा था तो इसने देखा कि एक फल फरोश गले सड़े फल ज़मीन पर फेंक रहा है। शरीफ इसके पास गया। कहने लगा कि ऐसा करो, ये ख़राब फल तुम मुझे दे दो, तुम्हारे तो ये किसी के काम के नहीं हैं। वो कहने लगा कि तुम क्या करोगे। इसने कहा कि यार, मैं गरीब सा बंदा हूँ, इस वक्त बेटी को फलों की ज़रूरत है जो मैं ख़रीद कर नहीं दे सकता। इस फल फरोश ने थोड़ा सा फल इसको दे दिया। कहने लगा कि ये ले जाओ, अपनी बेटी को ये साफ़ सुथरा फल खिलाओ, मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। ये सुनकर शरीफ इसे हैरत से देखने लगा। फल फरोश कहने लगा कि मैं जानता हूँ बेटी वालों की कितनी मजबूरियाँ होती हैं, मेरी भी बेटियाँ हैं, इसलिए ये तुम ले जाओ। शरीफ ने नम आंखों से वो फल का शॉपर पकड़ा और घर ले आया। बीवी से कहने लगा कि ये सिर्फ रुखसाना को ही खिलाना। बीवी कहने लगी कि इतना महंगा फल तुम कहाँ से ले आए हो। वो कहने लगा कि है कोई अल्लाह का बंदा जिसने आज तो मुफ्त में दे दिया, चलो चंद दिन तो बच्ची के अच्छे गुजर जाएंगे। जैसे तैसे ये वक्त भी शरीफ ने बड़े सब्र से गुजारा था। सेठ का कर्जा भी उतार चुका था और फिर एक नया उधार मांगने इसके पास पहुंचा था क्योंकि बेटी की डिलीवरी का वक्त करीब आ चुका था। इसने शेख से कहा कि बस इस बार 50,000 ही इसे चाहिए, ये भी बहुत जल्द चुका देगा।
सेठ ने इस बार कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो पिछली सारी रकम उतार चुका था, इसलिए इसे 50,000 रुपये उधार दे दिया। लेकिन पिछले 1 साल में वो मज़ीद कमज़ोर हो चुका था। चलता था तो इसका सांस फूलने लगता था कि जिस्म पर गोश्त नाम की कोई चीज़ बाकी ना रही हो। बहरहाल बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया था, ये सुनते ही इसके सारे ससुराल वाले हॉस्पिटल में मजमा लगाकर बैठ गए। दादी ने 1 रुपया भी बच्चे के हाथ में ना रखा था, ना ही इसका कोई सदका उतारा था, ना ही मिठाई का एक लड्डू किसी को अपने पैसों से खिलाया था। इसकी सास कहने लगी, भाई साहब, अल्लाह ने नवासा दिया है आपको, आप क्या सूखे मुंह ही ये खबर सुना रहे हैं? जाएं, जाकर देसी घी की मिठाई लेकर आएं। शरीफ की जेब में बस 3,000 ही बचे थे। हॉस्पिटल के सारे खर्चे वो दे चुका था। मजबूरन इसे मिठाई लानी पड़ी। इसकी नंदों और सास ने जी भरकर मिठाई खाई थी। फिर कहने लगी कि हमारे यहाँ ये रस्म है कि पहला बच्चा हो तो नाना ही सारे ख़ानदान में मिठाई बांटता है। फिर कहने लगी कि मेरी बरादरी तो खैर बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन 15 किलो मिठाई का इंतज़ाम आप लोग कर दीजिएगा। ये सुनना था कि शरीफ के होश उड़ गए। रस्मों के नाम पर ये औरत इसे लूटे जा रही थी। इस बार शरीफ ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, बहन जी, हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं है और मैं मज़ीद कोई भी खर्चा नहीं कर सकता। मैं बेटी का बाप हूँ। आप पहले भी मेरे हालात से वाकिफ़ हैं। मैं सिर्फ एक चौकीदार की नौकरी करता हूँ। फिर भी जो कुछ अपनी बेटी के लिए कर सकता था मैंने किया है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरी बसात नहीं है। ये सुनना था कि इसकी सास के माथे पर तेवरी सी चढ़ गई। इसने अपनी बेटियों को उठने का इशारा किया और चली गई। शरीफ अपनी बेटी को लेकर घर आ गया। जैसे ही 4 दिन पूरे हुए और इसके शौहर ने कहा कि वो चंद दिन में इसको लेने आ रहा है, तो बेटी फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, अब्बा, मुझे इनके घर में मत भेजो, ये लोग बहुत जालिम हैं। पिछले 1 साल से मैं इन लोगों की ज़्यादतियों को बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं है। ये सुनकर शरीफ परेशान सा हो गया था। वो रोते हुए बताने लगी कि इसकी सास इसे खाने को भी ढंग से कुछ नहीं देती और सारे घर का काम इस अकेली से करवाती है। शौहर भी इस पर रोज़ाना हाथ उठाता है, ज़रा ज़रा सी बात पर इसे मारता पीटता है। ये सब सुनकर शरीफ के दिल पर तो गहरे घाव पड़ गए थे, लेकिन इसकी गुर्बत इसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। शरीफ ने अपनी बेटी को ही समझाया था। कहने लगा कि तुम मेरी भी मजबूरी को समझो। तुम्हारी 2 बहनें अभी गैर शादीशुदा हैं और मुझे इनकी भी शादी करनी है। अगर मैं तुम्हें घर पर बिठा लूँगा तो इनके रिश्ते नहीं आएंगे। यहाँ पर तलाक हो जाए तो औरत को ही कसूरवार समझा जाता है। ये सुनकर बेटी चुप हो गई थी। शौहर लेने आया तो खामोशी से इसके साथ चली गई। 4-5 माह गुजर गए, लेकिन बेटी का कोई भी पता न था। एक दिन शरीफ का दिल बेहद घबराने लगा था। बेटी की तरफ से इसे अजीबो गरीब से वसवसे आ रहे थे। दिल का ये हाल था कि बिन पानी की मछली की तरह से मचल रहा था। वजह भी वो नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज वो छुट्टी लेकर घर जल्दी आ गया। बीवी से कहने लगा कि चलो आओ, रुखसाना से मिलकर आते हैं। बीवी भी तैयार हो गई। जैसे ही इसके घर के पास पहुंचे, अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। शरीफ और इसकी बीवी का तो दिल ही दहल गया था, क्योंकि आवाज़ें इसकी बेटी की थी। शरीफ ने जल्दी से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद ही इसके दामाद की करख्त आवाज़ आई कि कौन है। इसने कहा कि मैं शरीफ हूँ, दरवाज़ा खोलो। ये सुनकर कुछ देर तो खामोशी छा गई। इसके बाद इसके दामाद ने दरवाज़ा खोला तो सामने ही बेटी फर्श पर नीम मुर्दा सी हालत में लेटी हुई थी। शरीफ भागता हुआ अपनी बेटी के पास आया। इसके हाथों को आग से दागा गया था। इसके चेहरे पर नील के निशान थे और गर्दन पर नाखूनों के निशान थे कि जैसे इसे बहुत मारा पीटा गया हो। शरीफ ने बेटी के पास जाकर इसे पुकारा तो इसने बामुश्किल आंखें खोलकर अपने बाप को देखा था। फिर मुस्कुराई। कहने लगी, अब्बा, मैंने आपकी इज्जत रखने की खातिर इनका हर जबर सहा है, लेकिन शायद अब मुझ में ताकत नहीं रही। मैं रात से रब से यही दुआ कर रही थी कि मुझे एक बार अपने माँ बाप का चेहरा दिखा दे। ये कहने के बाद इसने शरीफ की गोद में ही सर रख लिया और चंद लम्हों में ही दम तोड़ दिया। ये देखकर तो शरीफ पागल सा हो गया था। इसकी बेटी शादी के नाम पर अपने बाप की इज्जत रखते रखते दुनिया से रुखसत हो गई थी। इसका छोटा सा बच्चा रो रहा था, जिसे ये तक नहीं पता था कि इसकी माँ मर चुकी है। इसकी सास और शौहर खामोश खड़े थे। शरीफ ने अपनी बेटी का सर ज़मीन पर रखा। इसकी बीवी भी बेतहाशा रो रही थी। शरीफ दामाद के पास आया और इसे मारने लगा। कहने लगा, तूने मेरी बच्ची के साथ क्या जुल्म कर दिया? तुमने इसे जान से ही मार डाला। इस बार शरीफ ने सब्र नहीं किया था। इसने अपने दामाद और इसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन बेटी मर चुकी थी।
شریف یہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ قدم کچھ مہینے پہلے اٹھا لیتا تو اس کی بیٹی شاید زندہ ہوتی